Hello everyone. So today I have with me Mr. Mayur Hazarika, who has scored rank 5 in the recent UPSC CSE results. So today we are going to have a conversation with him. So all the UPSC aspirants especially, please do join this interview because we are going to ask him many questions that are definitely going to help you in your own preparation. So welcome sir and congratulations for this excellent rank. Thank you. Thank you. It's amazing, and we are truly thankful that you are here today with us for the interview, and we are very excited to have this conversation with you. So let us start with the most important and I think usual question that everybody asks. How do you feel about rank 5? Yeah, it took some time for the fact to sink in. It took me around 10 or 15 days till that initially the information has sunk in now, and it is great. Feeling very humbled and very grateful to the universe for this. What Uh, was the reaction of your family and everyone when they came to hear about your rank? And was this at all expected? Everyone around me was got very emotional initially because no one was probably expecting this high of a rank. So we are hopeful that I might be able to clear the exam, but that was just being hopeful. But other than that, such high rank was not, I was not expecting such high rank. But all my friends and all my family are very happy now. So, sir, what is your score in prelim, main, and interview? Okay, I actually forgot my score. I'll just you cut this off and I'll just Yeah, say, it's okay. okay. I think it was prelims, it was 102 point something. In mains, it was 1054, sorry, it means in total 1054 or something. And in interview, it was 193. Okay, great. Wow. Like this is the score that everybody dreams of. Yeah. So, in one single line, what is the secret of your success? Uh, it would be very difficult to condense it down because this has been a long process kind of. But one, if I have to condense it down, then probably it would be a multiple rounds of revision. I went for revising the same resources over and over again, and probably that helped me in the exams. तो सर इतना अच्छा स्कोर आपका हर एक एग्जाम में आया तीनों स्टेजेस में आपका जो सक्सेस है तो ऑब्वियसली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होगी जो आपने फॉलो की होगी हर एक स्टेज पे तो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स मेरा प्रिपरेशन तो वैसे इंटीग्रेटेड ही था, प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग से नहीं था। रिसोर्सेज लगभग सेम ही थे फॉर बोथ प्री एंड मेंस। बट प्री के लिए मतलब अराउंड जनवरी से लेके मैंने प्री स्पेसिफिक पढ़ना शुरू किया, बहुत सारे रिवीजन किए, जो छोटे छोटे फैक्ट्स थे उनको याद करना शुरू कर दिया फ्रॉम जनवरी फरवरी से स्टार्ट करके। एंड आफ्टर दैट मेंस आते आते वहां पे मैंने बहुत सारे मॉडल आंसर्स वगैरह ऐसे चेक किए, तो ऐसे वैल्यू एडिशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया मेंस के टाइम पे, डेटा वगैरह जो मैं कोट कर सकूं एग्जाम में। और इंटरव्यू के लिए बहुत सारे ऐसे मॉक इंटरव्यूज दिया था मैंने। सर आपने अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी एंड व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड Okay, so I'm an MBBS graduate. I'm a doctor, and I probably started my preparation from around the final year. वहीं से फाइनल ईयर के अराउंड से मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था कर्सरी लेवल पे, नॉट गोइंग इनटू मच डिटेल्स और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। बट उसके बाद इंटर्नशिप शुरू हुआ, तो इंटर्नशिप के टाइम पे मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया था थोड़े सीरियसनेस से। उसके बाद जब रूरल चल रहा था एज ए डॉक्टर, तो उस समय मैंने सीरियसली प्रिपेयर किया। तो आई थिंक इट हैज बीन अ जर्नी ऑफ अराउंड 2 years or 2.5 years समथिंग। So you were a doctor, then why UPSC? I'm sure that must have been a question that your panel also asked you. The panel didn't ask me. Mock interviews, they asked repeatedly this question. I think the reason is that even before going into medical, मेरा interest था about UPSC, inclination था CSE को लेके, but coming from North East, उस समय वहाँ पे उतना guidance available नहीं था। मतलब I did not know anybody who could guide me at that moment. मुझे ये भी पता नहीं था कि एग्जाम कितने स्टेजेस में होता है, इवन बिफोर। मतलब इंक्लिनेशन था पर उतना भी मतलब अवेयरनेस नहीं था एग्जाम को लेके। इट वाज बैक इन 2015, इंटरनेट भी उतना अवेलेबल नहीं था। पर मेडिकल ज्वाइन करने के बाद थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक इंटरनेट अच्छे से आने लगा, तो
जब पता चला एग्जाम ऐसे ऐसे होता है, तो जो इनिशियल जो एक ड्रीम था, तो इट resurfaced and I thought कि I should give a sincere attempt into this. So which university did you study at for your medical? It was Srimanta Sankardev University of Health Sciences, Assam. It's in Assam. तो आप दिल्ली कब आए थे सर? आप यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए दिल्ली आए थे, आपने वहीं पे की थी? No, I prepared for pre and means from Assam. उसके बाद means का रिजल्ट आने के बाद जो इंटरव्यू स्टेज होता है, तो इंटरव्यू स्टेज के लिए आई थॉट कि आई शुड ऐसा मॉक्स वगैरह देना चाहिए, तो प्रैक्टिस हो जाएगा, बोलने का आदत हो जाएगा, तो इसीलिए आई वेंट टू दिल्ली ओनली आफ्टर means रिजल्ट. So what was your optional subject and why did you choose it? ओके, मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था. मैंने पहले एक दो और सब्जेक्ट से ट्राई किया था, लेकिन फॉर मी एंथ्रोपोलॉजी, फर्स्ट रीजन तो ये है कि कमिंग फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, a lot of the things from physical anthropology portion पर्टिकुलर बहुत नेचुरली आता था मेरे को, मतलब वो सब उनके ऊपर बहुत जेनेटिक्स वगैरह के ऊपर ऑलरेडी काफी डिटेल्स पे पढ़ा हुआ था मेडिकल के टाइम पे ही. एंड बाद में जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी वगैरह पोर्शन थे, तो इट हेल्प मी विथ वैल्यू एडिशन इन जीएस पेपर्स. सो इट वाज काइंड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ऐसा था, इट वाज मतलब ऐसा स्वीट स्पॉट पे था जहाँ पे मेरा बैकग्राउंड नॉलेज भी था काफी हद तक, वो अपने ग्रेजुएशन पीरियड से, और बाकी कुछ भी जो नया मिल रहा था वहां से कुछ जीएस पे ऐड करने को इजी हो रहा था. तो that's the reason why I went for anthropology. So do you think that coaching is important to clear this exam, or can people uh, get success in this exam without any outside coaching or other help? आई थिंक ये बहुत ही इंडिविजुअल बेस्ड क्वेश्चन होगा. किसी को कोचिंग की जरूरत, कोचिंग नहीं बोलूंगा, गाइडेंस की जरूरत होती है, किसी को नहीं होता है. a lot of people are such that उनको खुद ही पढ़ने का आदत होता है. मैं भी वैसा ही था. मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आई हैव सेल्फ प्रिपेयर्ड, लेकिन फिर भी मेरे को कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था. फॉर एग्जांपल इकोनॉमी हो गया, तो इसलिए, और वैसे भी मैं जॉब पे था, तो थोड़ा टाइम कॉन्स्टेंट भी था, तो आई थॉट कि गाइडेंस मिलने से थोड़ा हेल्प हो जाएगा, तो मैंने तो एक ऑनलाइन ज्वाइन किया था. आई डोंट थिंक कि एकदम नेसेसरी ही है. इट इज ऐसा नहीं है कि उसके बिना नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा गाइडेंस अगर टाइम कांस्टेंट है या फिर वैसा कुछ फैक्टर्स आ गए हैं, तो मे बी थोड़ा गाइडेंस हेल्प हो सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेजर पोर्शन तो खुद ही करना पड़ता है. आपने जब प्रिपरेशन अपनी करी उस टाइम पे डिड यू हैव अ मेंटोर, समबडी हु गाइडेड यू ऑल द टाइम, और डिड यू सीक हेल्प फ्रॉम यूट्यूब चैनल्स, या फिर बुक्स पे ही सबसे ज्यादा आपका ट्रस्ट था? व्हाट वाज योर मोटिवेशन एंड गाइडेंस? आई वुड से कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल. मतलब मेजर पोर्शन वुड बी माय ओन सेल्फ प्रिपरेशन फ्रॉम बुक्स. थोड़ा बहुत वीडियोस भी देख लेता था, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता था तो यूट्यूब पे पहले वीडियो देख लेता था. और जस्ट एज आई सेड कि कुछ टॉपिक्स या फिर कुछ सब्जेक्ट्स मेरे को बहुत दिक्कत लग रहा था, तो आई हैड जॉइंड ए कोचिंग. तो कोचिंग की तरफ से भी वहां पे एक मेंटर था, अलॉट कर दिए थे, तो उनके साथ भी कभी कभार ऐसे बात कर लेता था. लेकिन आई वुड से कि 70% 80% तो खुद ही करना पड़ता है दिस एग्जाम. और ऐसा कहते हैं कि अगर इतने बड़े एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको सारे डिस्ट्रैक्शन से हटना पड़ेगा. सो डिड यू डिलीट योर सोशल मीडिया, और आपने क्या अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना बिल्कुल छोड़ दिया था, अपनी सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म कर दी थी? डिड दैट हैपन? मैंने, आई वुड से कि एकदम टोटली जीरो नहीं हो गया था. आई हैड द हैंडल्स, मतलब एक्टिविटी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर दिया था. फेसबुक जैसे, वो फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, उनका एप्स डिलीट कर देता था, लेकिन गूगल क्रोम पे जाके चेक करता था दिन में एक दो बार. लेकिन वही है कि उसका इंटरफेस बहुत ही खराब होता है, तो एडिक्ट नहीं होता कि एक बार चेक कर लिया तो बस हो गया, देखने का मन नहीं करता. लेकिन ऐप्स होने से वो इंटरफेस बहुत ही एडिक्टिव टाइप का होता है, वैसे खुद ही पॉपअप कर देते हैं नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट कुछ भी हो तो. लेकिन क्रोम के ब्राउजर में वैसा नहीं होता था, तो वैसा था. और फ्रेंड्स वगैरह के साथ तो मैं हैंग आउट करता था, ऐसे रोज का नहीं, लेकिन वंस इन अ वीक या फिर मंथ में 2-3 बार ऐसा तो हो ही जाता था. पूरे दिन के लिए ऐसे निकल जाते थे या फिर वैसा कर ही लेता था. तो ट्रैवल पार्टीज वगैरह सब कुछ हो रहा था, बट थोड़ा थोड़ा, राइट? हाँ, रेस्ट्रिक्टेड मैनर में. हाँ, क्योंकि हर वक्त पढ़ना भी मतलब इतना पॉसिबल नहीं होता है ना. मतलब इमोशंस से ही ह्यूमन बनते हैं, अगर इमोशंस को कट कर दिया तो मेरे से तो नहीं होता था. आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे दिन में? अच्छा, ये वेरी करता था बिकॉज आई वाज इन वर्क बिफोर प्रीलिम्स. उसके बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, तो उसके बाद से मैं मतलब जॉब में नहीं था प्रीलिम्स के बाद में. लेकिन बिफोर प्रीलिम्स आई यूज्ड टू स्टडी फॉर अराउंड लाइक 6 or 7 hours a day.
और उसके बाद मे बी 8 or 9 hours a day, मतलब बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। और उसके बाद तो इंटरव्यू के स्टेज पे उतना पढ़ाई होता नहीं है, बस 2-3 घंटे होने से भी काफी हो जाता है। तो जो प्रीलिम की प्रिपरेशन होती है, एक तो प्रीलिम जो है वो इतना ज्यादा टफ क्यों होता है कि कई लोग प्रीलिम तक भी नहीं पहुंच पाते? आपको क्या लगता है, व्हाट इज द रीजन व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू क्लियर इवन दिस फर्स्ट स्टेज? आई वुड से कि इवन फॉर मी, मतलब सबसे अनप्रिडिक्टेबल स्टेज तो हमेशा प्रीलिम्स ही रहता है, क्योंकि मेंस में जो भी क्वेश्चन आए, अगर उस क्वेश्चन के अराउंड कुछ भी नॉलेज है तो उसको प्रेजेंट तो जरूर किया ही जा सकता है, लेकिन प्रीलिम्स में वो लोगों ने जो 4-5 ऑप्शंस दे रखे हो तो उनके ऊपर आइडिया होना बहुत ज्यादा एसेंशियल हो जाता है, तो इसीलिए इट बिकम्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है गेम। लेकिन वही बात है कि अनप्रिडिक्टेबल होने से भी अगर बेसिक्स तो सबके लिए सेम ही रहता है। दिस एग्जाम इज अबाउट मेकिंग एज ओवर अदर्स। ऐसा नहीं है कि 200 में से 200 स्कोर करना है, बस द कैंडिडेट्स नीड टू एंश्योर कि जो आंसर्स बाकी सभी मतलब करेक्ट कर रहे हैं वो गलत नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट लाइक टॉप 80% में जो भी करेक्ट हो रहा है वहां पे करेक्ट करने का ट्राई कीजिए, और जो बाउंसर्स हैं उनको तो स्किप ही कर देना चाहिए। मतलब कुछ तो क्वेश्चंस एकदम ही बाउंसर्स होते हैं, तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल अबाउट चूजिंग कि कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा स्किप करना है। तो प्रीलिम्स की पढ़ाई कितने महीने कम से कम करनी चाहिए और कब रिवीजन स्टार्ट करना चाहिए, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मैंने तो इंटीग्रेटेड ही किया था, तो बाय द टाइम ऐसा सेम ही रिसोर्सेज था, लेकिन वो मैंने कुछ जनवरी के अराउंड से एकदम डेडिकेटेडली फॉर प्रीलिम्स कर दिया था, तो इट वाज अराउंड 4 मंथ्स, आई थिंक 4-5 मंथ्स। तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मेरे को पहले ही थोड़ा पैनिक हो गया, तो मे बी आई स्टार्टेड कुछ ज्यादा ही पहले, बट आई थिंक वन कैन स्टार्ट अराउंड फरवरी एज वेल, अगर मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस है या फिर पता है कि कहाँ पे क्या करना चाहिए। आई थिंक 4 months इज गुड इनफ स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स। ऐसा नहीं है कि 4 months पढ़ने से हो जाएगा, आई एम सेइंग कि इंटीग्रेटेड के बीच में से प्रीलिम्स से 4 महीने पहले डेडिकेटेड फॉर प्रीलिम्स हो जाना चाहिए। पीवाईक्यूज जो होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने में? इम्पोर्टेंस तो मेरे ख्याल से दो, इन 2 ways इट हैज। फर्स्टली तो ये है कि पैटर्न समझ में आना लगता है कि कैसे क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो रहे हैं उस टॉपिक से, क्योंकि और टॉपिक पढ़ने से ही पता नहीं चलता कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं। पीवाईक्यू देखने से वो पता चलता कि क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं एग्जाम में। और उसके ऊपर भी ऐसा है कि सेकंड जो हेल्प करता है कि कुछ पैट टॉपिक्स से होते हैं, जिस टॉपिक्स के अराउंड बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो वो भी पता लगता है पीवाईक्यूज करने से। वो सेम टॉपिक जब खुद पढ़ते हैं तो उसे और भी ज्यादा डिटेल्स में प्रिपेयर किया जा सकता है, अगर पीवाईक्यू पहले एनालाइज करके रखा हुआ है तो आई थिंक दीज आर द 2 ways इन विच पीवाईक्यू हेल्प्स। और मॉक टेस्ट कब लेना स्टार्ट करना चाहिए और कितने मॉक टेस्ट आपने लिए थे प्रीलिम के लिए? मेरा मॉक टेस्ट का एक्सपीरियंस इतना नहीं है। आई डिड नॉट गिव अ लॉट ऑफ मॉक्स। वो बेसिकली यूं ही था कि मेरा वो टाइम कॉन्स्टेंट था, आई वाज इन जॉब, तो इसलिए उतना टाइम नहीं दे पाया। बट आई थिंक देना अच्छा होता है। और देने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि एनालाइज अच्छे से करे, आंसर्स देख के उसको फिर से ऐड करे, अगर कहीं पे अपना गैप्स है, लूप होल्स है जो उसको करेक्ट करना पड़ता है तो वो करे। मैंने कुछ ऐसे सेक्शन वाइज आई थिंक आई गिव अराउंड लाइक 10 or 15 ऑफ मॉक्स, एंड फुल लेंथ कुछ 2-3 ऐसा दिया होगा। तो सर, जैसे कि आपने बताया आप जॉब कर रहे थे उस टाइम पे, तो व्हाट वाज योर रूटीन देन? और कई लोग जो होते हैं वो जॉब छोड़ देते हैं बिकॉज कहते हैं कि इसमें फुल टाइम देना पड़ता है आपको, कमिटमेंट। सो यू थिंक कि जॉब करते करते भी दिस इज पॉसिबल? वैसे तो आपने प्रूव कर दिया इट्स पॉसिबल, बट डू यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू डू अ जॉब एंड योर यूपीएससी प्रिपरेशन साइड बाय साइड? ओके, तो यहाँ पे आई आई मैं ऐसे आई मस्ट ऐड कि मेरा जॉब उतना भी मतलब स्ट्रिक्ट नहीं था। आई हैड ओपीडी आवर्स ऑफ जॉब, मतलब मैं कुछ 3-4 बजे तक फ्री हो जाता था, तो उसके बाद आके मैं पढ़ता था। सुबह जाने से पहले मैं कुछ 1-2 घंटा पढ़ लेता था, और कुछ शाम के 5 बजे या फिर 4:30 बजे से स्टार्ट कर लेता था फिर से। और मैं रात भी पढ़ता था, कभी कभार ऐसा रात को 1:30 बजे 2 बजे तक पढ़ लेता था, सुबह उठ के फिर आधा घंटा 1 घंटा हो सके तो पढ़ लेता था। तो वैसा ही था ओवरऑल शेड्यूल, फिक्स नहीं था, चेंज होता रहता था शेड्यूल। ओवरऑल आई ट्राइड कि कुछ 6 आवर्स 7 आवर्स हो जाए, बस वही टारगेट रहता था। ओके, सो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ओके, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओह वाओ!
सो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने जब आप मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू सब कुछ करके गए होंगे, सो वाज द पेपर वेरी सरप्राइजिंग और वाज इट सम वे प्रेडिक्टेबल? आपने कुछ चीजें जो आप करके गए थे प्रिपेयर, आपको लगा कि वही आया? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द क्वेश्चन पेपर? प्री के हिसाब से या फिर मेंस के हिसाब से? मतलब प्रीलिम के हिसाब से। अच्छा, प्रीलिम के हिसाब से मेरा मैंने बहुत ज्यादा मॉक तो दिया नहीं था, तो क्वेश्चंस जब देखा तो जो भी पहले आता था वो फर्स्ट राउंड में उसी क्वेश्चन ट्राई किया, वही जिसके ऊपर कुछ अराउंड 80% 85% श्योरिटी था। तो ऐसा कुछ सरप्राइज तो नहीं हुआ, पर मैं ऐसे सोच के गया था कि आई विल बी अटेम्प्टिंग अराउंड 85 और 80 क्वेश्चंस। पर वो जब फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर हो गया, तब मेरे को लगा कि मे बी 45-50 क्वेश्चंस ऑलरेडी करेक्ट हो गए हैं, तो उतना रिस्क नहीं लेना है। तो आई एंडेड अप अटेम्प्टिंग जस्ट 70 और 71 ऑफ दोस क्वेश्चंस, क्योंकि रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं था। तो हाँ, ऐसा था। और जो सी सैट का पेपर होता है, उसके लिए कई बार ऐसा होता है कि लोग अपना जनरल पेपर तो क्लियर कर लेते हैं बट सी सैट में रह जाता है। तो आपने उसकी प्रिपरेशन साइड बाय साइड की है, उसको कितनी इंपॉर्टेंस दी और कैसे उसकी तैयारी की? ओके, सो मतलब मेरा तो साइंस का बैकग्राउंड था, तो सच मैथ्स इतना भी वीक नहीं था, मैथ्स का पोर्शन। लेकिन फिर भी मैंने सी सेट के लिए वो जो कोचिंग ज्वाइन किया था वहीं से कर लिया था, साइड बाय साइड। दिन में कुछ एग्जाम से कुछ 4-5 महीने पहले दिन दिन में कुछ 1 घंटे का वीडियो देख लेता था, तो वैसे ही कर लेता था, वैसे ही हो गया कंप्लीट। वैसे सी सेट के लिए मतलब अभी इस साल तो बहुत ज्यादा कुछ चेंज हो गया है, लेकिन प्रीवियस ईयर उतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अगर डिफिकल्ट भी होता तब भी आई थिंक कैंडिडेट्स को ऐसे फोकस कर लेना चाहिए कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, क्योंकि 3 भाग में आता है, एप्टीट्यूड होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, मैथ्स होता है। तो अपने स्ट्रेंथ्स के हिसाब से अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स को देख लेना चाहिए। अगर कहीं पे बहुत स्ट्रांग है तो उसी को काफी ऐसा बना देना चाहिए कि वहां पे कोई भी मार्क्स लूज ना हो। तो मैंने वैसे ही सोच के गया था कि पता चल जाता है एग्जाम हॉल में टाइम पे ही कि कौन सा पोर्शन अपने पल्ले पड़ रहा है और कौन सा ज्यादा टफ लग रहा है। ओके, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं, सब्जेक्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं जिन पे हम स्पेशली फोकस करके, जिन एरियाज पे वी कैन विन द रेस ऑफ प्रीलिम्स? एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, पॉलिटी, इकोनॉमी, आई थिंक these are probably the biggest factors at the moment. I might be forgetting something now. हिस्ट्री से भी आ रहा है आजकल काफी कुछ, स्पेशली एंशियंट मिडिवल पार्ट से भी क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए हैं काफी डेप्थ पे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तो वो जो स्टेपल सब्जेक्ट्स तो है ही, लेकिन उसके ऊपर से आई थिंक अभी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स भी एक ही साथ होता है, तो एनवायरनमेंट इज वन एरिया जहाँ पे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना चाहिए, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक। तो करंट अफेयर्स जो होते हैं वो किस टाइप के पूछे जाते हैं यूपीएससी में? और एग्जाम्स के मुकाबले मैंने सुना है कि यूपीएससी में थोड़े ज्यादा चैलेंजिंग करंट अफेयर्स होते हैं, कहीं से कुछ भी आ जाता है और आपको काफी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए टॉपिक्स की, तभी आप उनके आंसर दे सकते हो। सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स? अच्छा, तो मैं ना इन जनरल ओवरऑल एक बहुत ही स्टैटिक ओरिएंटेड इंसान था, मतलब करंट से ज्यादा आई यूज्ड टू फोकस मच मोर ऑन स्टैटिक। लेकिन फिर भी करंट के लिए तो मेरा अप्रोच काफी मेसी था, ऐसा स्ट्रीमलाइंड अप्रोच नहीं था। कभी कभार मंथलीज पढ़ लेता था, वो फिर प्री के पहले जाके प्रीलिम्स कंपाइलेशन पढ़ लिया, वो न्यूज़पेपर भी कभी कभार देख लेता था। इतना रेगुलर नहीं था न्यूज़पेपर उस समय, क्योंकि वो टाइम का कॉन्स्ट्रेंट था उस समय। लेकिन फिर भी काफी मैसी था, लेकिन कुछ ना कुछ तो करता रहता था, जिससे आइडिया रहता था कि क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं। अभी विथ रेस्पेक्ट टू एग्जाम्स, जब एग्जाम होता है तब ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस देखने से पता चल जाता है कि ये हर किसी के लिए बाउंसर होने वाला है। देयर विल बी वेरी फ्यू जो उसको अटेम्प्ट कर पाएगा, तो उसको छोड़ देना ही ठीक है, वरना ऐसे ही नेगेटिव लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ करंट अफेयर्स इशू ऐसे बार बार ऑफ रिपीट होते रहते हैं, जो हर कोई करता रहता है, मतलब ऑलमोस्ट 60-70% जो भी एक्सपीरियंस है उनको पता है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर ऐसा टॉपिक्स, ऐसे क्वेश्चंस को नहीं मिस करना चाहिए जहाँ पे ऑलमोस्ट सब कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्कोर अच्छे से आना चाहिए। तो वैसे करंट अफेयर्स पता चल जाता है, जो प्रीलिम्स कंपाइलेशन वगैरह आता है प्रीलिम्स से पहले, तो उसे पढ़ लेने से आइडिया हो जाता है। ओके, और इसी तरह जो जीके होती है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी,
वो किस टाइप की जीके होती है जो यूपीएससी आपसे पूछता है और जो आपको तैयार करनी चाहिए? आई थिंक वो सब तो लगभग हर किसी का सीरियस एस्पिरेंट का सेम ही होता है। वो जो रिसोर्सेस होता है, रिसोर्स उन्हीं को बार बार रिवाइज करना चाहिए। मेरे ख्याल से यही है कि इतना बार रिवाइज करना चाहिए कि जब एग्जाम में, क्योंकि बहुत कैंडिडेट्स का ऐसा होता है कि टॉपिक देखा हुआ होता है लेकिन एग्जाम के टाइम पे अच्छे से रिकॉल नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं पढ़ा था पहले लेकिन अभी इमीडिएट पास्ट में रिवाइज नहीं किया है, इसीलिए नॉट श्योर अबाउट द ऑप्शंस, एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आई थिंक बहुत बार रिवाइज करना चाहिए। जब रिवीजन इतने बार हो जाता है तो याद आना बहुत ज्यादा, पिक्चर क्लैरिटी काफी हो जाती है। तो आई थिंक रिसोर्स सेम ही रहता है हर किसी का, उसके ऊपर से बस रिवीजन रिवीजन के ऊपर ही खेल है मेरे हिसाब से। तो जो इतनी वास्ट टॉपिक्स होते हैं, इतना वास्ट सिलेबस होता है यूपीएससी का, उसको इतनी सारी इंफॉर्मेशन को याद रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो आपने सब कुछ रिटेन करके रखने के लिए आपने क्या टिप्स या ट्रिक्स यूज करी थी? अच्छा, मैं तो अभी ऐसा बताऊंगा कि जो स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन होता है, तो आई हैव डिवाइडेड इनटू काइंड ऑफ 3 स्टेजेस। एक तो होता है इनिशियल बिगिनर स्टेज, और जो इंटरमीडिएट स्टेज, और देन एडवांस स्टेज। सो बिगिनर और अर्ली इंटरमीडिएट स्टेज के लिए आई यूज टू गो फॉर स्पेस रिपीटिशन टेक्निक, जिसके ऊपर मतलब ऐसा रिवाइज करना होता है, लेकिन रिवीजन का जो गैप होता है उस गैप को मतलब विद पैसेज ऑफ टाइम गैप बढ़ता जाता है। लेकिन लेट्स से आज एक टॉपिक पढ़ लिया तो नेक्स्ट रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन कल ही होना पड़ेगा। देन सेकेंड रिवीजन आफ्टर 2 days, थर्ड रिवीजन आफ्टर 7 days। तो ऐसे ऐसे होता था, तो स्पेस रिपीटिशन करता था। और एडवांस स्टेज पे जाके मैं वो एक्टिव रिकॉल टेक्निक यूज करता था क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। तो बेसिकली वही 2 टेक्निक्स में यूज करता था चीजों को रिटेन करने के लिए। So, are there any special tips that you would like to give to aspirants to score higher in the prelims exam, जिससे कि they can make it to the cutoff list? टिप्स तो वही बोला कि मैं जो पहले बोला कि वन थिंग दैट आई वुड प्रोबब्ली कंडेंस इट डाउन वुड बी रिवीजन। बहुत बार रिवाइज करना चाहिए। रिसोर्सेज को बहुत मतलब मल्टीपल रिसोर्स नहीं खोलना चाहिए, रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना चाहिए। पर वो लिमिटेड रिसोर्स क्वालिटी रिसोर्स होना चाहिए, सब क्वालिटी का रिसोर्स होने से नहीं होगा। क्वालिटी रिसोर्स हो और उसी को बहुत बार रिवाइज करेंगे तो आई थिंक दैट वुड बी वन टिप दैट आई वुड गिव। Okay, so now let's move on to the mains exam. तो जब आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है, आपको एकदम इमीडिएटली मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, या फिर यू कैन टेक अ लिटिल ब्रेक थोड़ा सा एंड देन यू कैन स्टार्ट लेटर? कितना टाइम होता है आपके पास? आई थिंक रिजल्ट देने के बाद तो टाइम नहीं होता है, रिजल्ट देने के बाद तो स्टार्ट ही करना होता है। मे बी कैंडिडेट्स कुछ 4-5 days का ब्रेक ले सकते हैं आफ्टर प्रीलिम्स एग्जाम, लेकिन उसके बाद तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर ही देना चाहिए। और रिजल्ट आने के बाद तो, प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद तो फुल ऑन ही स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके। और मेंस एग्जाम में जो इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए क्या टाइम शेड्यूल बनाना चाहिए कि इतने महीने में या इतने टाइम में ये सब्जेक्ट पूरा कवर हो जाना चाहिए? साइमल्टेनियसली पढ़ना चाहिए सब्जेक्ट्स को, या फिर एक एक करके या दो दो करके उठाना चाहिए? व्हाट इज द आइडियल वे टू स्टडी फॉर मेंस? आई थिंक टाइम डिस्ट्रीब्यूशन वुड लार्जली डिपेंड अपॉन कि कैंडिडेट का ऑप्शनल कितना प्रिपेयर्ड है। अगर उसका ऑप्शनल पहले अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है, लेट्स से ही इज प्रिपेयर्ड विथ ओनली जस्ट 20-30% ऑफ द ऑप्शनल, तो काफी काफी टाइम ऑप्शनल को देना पड़ेगा। लेकिन लेट्स से कैंडिडेट इज अराउंड प्रिपेयर्ड विथ 70-80% ऑफ द ऑप्शनल, देन ही कैन फोकस मच मोर ऑन जीएस। सो किस सब्जेक्ट पे कितना देना पड़ेगा, इट वुड डिपेंड अपॉन, फर्स्ट फैक्टर वुड बी ऑप्शनल कितना प्रिपेयर्ड है। और उसके बाद भी इन जनरल जो मैं एक मेरा जो एक था कि अराउंड 3 months मिलता है, कुछ 2.5 2.5 to 3 months ऐसा मिलता है। तो फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन शुड बी डन बाय विद इन लाइक 1 month or 1.5 months। और उसके बाद से रिवीजन और भी ज्यादा, वो स्पेस कम कर करके बहुत बार रिवाइज करना पड़ता है। तो आपने स्पेशली अपने ऑप्शनल की प्रिपरेशन कैसे करी थी और कितना टाइम दिया था उसको? और आपको क्या लगता है कि क्या वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, या फिर अगर नहीं है तो उसको कैसे आपने यूज किया अपनी कट ऑफ में आने के लिए? ओके, सो ऑप्शनल का आई थिंक आई वाज डन विथ मेरा 80 या फिर 85% तो प्रीलिम्स से पहले ही कंप्लीट हो गया था। आई हैड स्टडीड इट ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप पीरियड, थोड़ा थोड़ा करके। एंड ओवरऑल इट वाज, मैं सेल्फ प्रिपेयर्ड ही किया था, कुछ कोचिंग नहीं था मेरा ऑप्शनल को लेके।
तो बाकी कुछ वैल्यू एडिशन के टेक्निक्स होते हैं, जैसे केस लॉज हो गया, सॉरी केस स्टडीज हो गया, डायग्राम्स हो गया, तो वो सब यूज करके स्कोर थोड़ा हाई किया जा सकता है। ओवरऑल आई थिंक एंथ्रोपोलॉजी इज ए गुड इनफ, डिसेंट इनफ स्कोरिंग ऑप्शनल। So, what are some of the tips that you would like to give for good answer writing in the exams? जो ऐसी चीजें जो आंसर में अगर आप करो तो यूपीएससी would reward it and you would get better marks. हाँ, तो विथ दैट आई वुड से कि आंसर्स को लेके मेंस में आई बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स। एक तो होता है बेसिक चीजें विद द एग्जाम विद द आंसर्स, और एक होता है समथिंग एक्स्ट्रा जिसको मैं वैल्यू एडिशन बोलता हूँ। और जो बेसिक चीजें होते हैं, जो मेरे को ऐसा लगता है कि a lot of candidates miss is वो डिमांड, क्वेश्चन का डिमांड फुलफिल नहीं करता। अगर क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, let's say the question is asking something in a very tricky manner about a particular issue, तो कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो इशू के ऊपर जो भी पढ़ के जाता है वो उसी को लिख के आ जाता है। वो डिमांड जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको उसके बारे में नहीं बताता है। तो बेसिक चीजों के अंदर वो आता है कि फर्स्टली डिमांड ऑफ द क्वेश्चन शुड बी एड्रेस्ड। उसके बाद जितनी भी डिमांड्स है क्वेश्चन के, उतने मतलब अगर 3-4 वर्ड्स मेंशन है, की वर्ड्स, तो उनको भी ईच ऑफ देम शुड बी एड्रेस्ड। थर्डली क्वेश्चन वो बॉडी का इंट्रो होना चाहिए, बॉडी में पॉइंट वाइज आना चाहिए, और बाकी कंक्लूजन भी अच्छा होना चाहिए। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स विद एन आंसर। और वैल्यू एडिशन के बारे में आई थिंक कुछ चीजें होते हैं जिसको अगर अच्छे से किया जाए तो थोड़ा सा आंसर देखने में अच्छा लग जाता है, या फिर उसका उसका मतलब स्टेचर थोड़ा हाई हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंट्रोडक्शन में अगर GS2 का थोड़ा कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसको आर्टिकल वगैरह से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जजमेंट्स वगैरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके वैल्यू एडिशन करने के आई थिंक देयर आर, मैं कुछ 7-8 टेक्निक्स यूज करता था। जैसे एक तो था डेटा या फिर स्टैटिस्टिक्स कोड करना, रिपोर्ट्स कोड करना, गवर्नमेंट स्कीम्स कोड करना, एनेक्डोट्स वगैरह, वो ऐसे और एथिक्स में काम आ जाता है। उसके बाद डायग्राम्स, मैप्स। तो आई थिंक दीज आर सम वैल्यू एडिशन टेक्निक्स दैट वन कैन यूज टू गेट हायर स्कोर्स। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में जिसका कोई आइडिया ही ना हो जिस टॉपिक के ऊपर, तो हाउ वुड यू अटेम्प्ट इट? अच्छा, तो फॉर्चुनेटली इस साल ऐसा बहुत ही कम क्वेश्चन आया था जिसके ऊपर एकदम ही आइडिया नहीं था। कुछ ना कुछ तो आइडिया होना आई थिंक इज गुड। अगर जितने क्वेश्चंस के ऊपर एकदम, लेट्स से एक कैंडिडेट हैज 2 क्वेश्चंस जिसके ऊपर एकदम ही आइडिया नहीं है, और एक कैंडिडेट का he has 7 such questions throughout the exam जिसके ऊपर कुछ भी आइडिया नहीं है, तो सेकंड वाले का चांसेस कम हो जाता है वो इंटरव्यू तक पहुंचने का। तो आई थिंक इट्स बेटर नॉट टू हैव सच सिनारियो। लेकिन अगर आ भी जाए तब भी आई थिंक एटलीस्ट कुछ ना कुछ पता होना, थोड़ा सा भी कुछ ना कुछ पता होना जरूरी होता है। अदरवाइज अगर नहीं पता है तब भी कुछ जेनेरिकली ट्राई कर सकते हैं कुछ सॉल्यूशंस निकालने के लिए। जैसे अभी अभी जैसे तो नहीं आएगा दिमाग में, मैं क्वेश्चन आने से तभी पता चलेगा। लेकिन अगर जो क्वेश्चन जो भी पूछ रहा है उसके जितने भी, जैसे मैंने बोला कि कुछ डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं उसको अंडरलाइन कर ले, उसको ऐसे पॉइंट पॉइंट बना के लिखना शुरू कर सकते हैं, डायग्राम वगैरह डाल सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो, लकीली मेरा ऐसा नहीं हुआ था। इस साल एक GS3 का एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे कुछ सेलुलोज डिकम्पोजिशन को लेके आया था। तो वहां पे भी आई हैड एटलीस्ट 1 पॉइंट स्पेसिफिक कि इट इज अ सेलुलेज एंजाइम होता है व्हिच ब्रेक्स डाउन सेलुलोज। तो एटलीस्ट हैव समथिंग इज गुड, अदरवाइज तो मतलब दिक्कत ही हो जाता है। यूपीएससी ने अभी एक न्यू ट्रेंड स्टार्ट किया है जिसमें कि फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस आने लगे हैं एग्जाम में। आपको एक कोट दिया जाता है और देन यू आर आस्क्ड टू कमेंट ऑन इट। कई बार कोट ऐसा होता है बहुत एब्स्ट्रैक्ट सा कि लगता है कि इसका क्या ही रिलेशन है पॉलिटिक्स से या फिर सोसाइटी से, इसको कैसे, इस पे क्या कोई कैसे पूरा का पूरा ऐसे लिख सकता है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? एक फिलोसॉफिकल एसे को किस तरह से अटेम्प्ट किया जा सकता है? ओके, सो मेरा ये मानना है कि हर एक ऐसे का जो भी कोट दिया हुआ है उसका एक सेंट्रल थीम जरूर होता है। मतलब जो भी, लेट्स से फेमस पर्सनैलिटी है सेड दैट स्टेटमेंट, तो उसके पीछे तो कुछ ना कुछ तो एक पर्टिकुलर थीम जरूर रहा होगा, एंड दैट्स व्हाई ही हैज सेड दैट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट ए कैंडिडेट शुड, मतलब उसको लिटरली समझने के बजाय उसका कुछ कोर थीम अगर है उसको समझने का ट्राई करना चाहिए। जैसे इस साल मैंने ट्राई किया था, जो फर्स्ट ऐसे व्हिच आई अटेम्प्टेड वाज, अ शिप इज सेफ एट द हार्बर बट इट इज नॉट व्हाट इट इज बिल्ट फॉर।
So this is basically referring to the central theme of courage, रिस्क टेकिंग बिहेवियर या फिर स्टेपिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन. सो वैसे करके वो सेंटेंस जो होता है उसको कंडेंस करना होता है, तो तब सेंट्रल थीम जो होता है उसका. तो एक बार जब सेंट्रल थीम पता हो जाए उसके बाद नाउ दिस इज एन एसे अबाउट करेज बेसिकली. तो करेज के ऊपर ऐसे लिखना इजी हो जाता है. तो रादर देन थिंकिंग अबाउट द शिप इज सेफ एट द हार्बर बट इट इज नॉट व्हाट इज बिल्ट फॉर. तो आई थिंक दैट द कैंडिडेट शुड ट्राई टू कंडेंस जो भी फिलोसॉफी है, जो भी लाइन दिया हुआ है उसको, उसका जो सेंट्रल थीम है, उसका जो सेंट्रल मोटिव था उसके लिए कंडेंस करना होता है. उसके बाद आई थिंक इट बिकम्स इजियर टू थिंक अबाउट मल्टीपल एंगल्स. अभी करेज के हिसाब से पॉलिटिकल एंगल आ जाएगा, इकोनॉमिक एंगल आ जाएगा, हर कोई एंगल आ जाएगा. लेकिन शिप, इफ समबडी कीप्स ऑन थिंकिंग अबाउट शिप, तो उसके अराउंड नहीं आएगा अपने पॉइंट्स. तो अगर हम करेज का थीम पिक करें तो उस पे हम क्या क्या बात कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल लाइक व्हाट डिड यू राइट? मेरे ऐसे का स्ट्रक्चर ऐसा था कि आई यूज टू स्टार्ट विथ एन एनेक्डोट. तो वहां पे मैंने रोजा पार्क्स का एग्जांपल स्टार्ट किया था इस साल, उस वाले ऐसे पे. फिर आई यूज टू कनेक्ट इट विथ द लाइन दैट, मतलब रोजा पार्क्स के एग्जांपल से ही जो लाइन दिया हुआ है उसके सारे से कनेक्ट लिंक सेट करता था. और उसके बाद मैं टेम्पोरली स्टार्ट करता था. स्टार्ट टेम्पोरली मतलब प्री हिस्टोरी, एंशियंट, medieval, modern, ऐसे एग्जांपल्स, लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स एंड एनेक्डोट्स. जैसे फर्स्ट एग्जांपल में प्री हिस्ट्री में आई यूज्ड एग्जांपल की अर्ली मैन जो फायर टेम किया था. तो पहले बाकी एनिमल्स की तरह भी हमारे एंसेस्टर्स भी जड़ जाते थे, बट देयर वाज वन पर्सन हु स्टेप्ड आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन एंड थॉट ऑफ टेमिंग फायर. दस केम कुक फूड एंड दस बिगेन सिविलाइजेशन. तो ऐसे स्टार्ट किया मैंने. और उसके बाद जो भी जितनी भी एग्जांपल्स है वो ऐसे टेम्पोरली आई केप्ट ऑन थिंकिंग. सोक्रेटिस हो गया, कोपरनिकस हो गया, तो जोहानस केपलर, वो सब ऐसे सोचते सोचते आया. मिडिवल्स में भी काफी कुछ ऐसे एग्जांपल्स कोट किए, बाहर के एग्जांपल्स, इंडिया के एग्जांपल्स. और उसके बाद मॉडर्न पे आते, मॉडर्न में आके उसको थेमेटिक बना दिया. पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल. इकोनॉमिक में 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स कोट किया, उसका एग्जांपल. सोशल में राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर. एनवायरनमेंट में सुंदरलाल बहुगुणा का केस कोट किया, चिपको आंदोलन. तो लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स वही था, मतलब मेरा स्ट्रेटजी, लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स. खाली स्ट्रक्चर ऐसा था. That is very interesting. So what is the importance of including facts and figures in your answers? क्या हमें डेटा और जो नंबर्स होते हैं वो हमें लर्न करने चाहिए, वो जरूरी है अपने आंसर्स में इंक्लूड करना, या फिर उसके बिना भी आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं? GS, with respect to GS or with essay? GS, for me, I was a very data oriented person. मतलब I had by hearted I think around 800 900 statistics. तो हर एक आंसर पे आई यूज टू कोट अराउंड, स्पेशली विद GS3 जो इकोनॉमी का पेपर था, आई कोटेड हर एक क्वेश्चन पे आई कोट अराउंड 8 to 12 स्टैटिस्टिकल डेटा. तो बहुत सारे ऐप मैंने तो बहुत यूज किया था उससे. और इतना सारा स्टैटिस्टिकल डेटा आपने कैसे मेमोराइज किया? बिकॉज ये तो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू मेमोराइज नंबर्स. हाँ मतलब आई डोंट नो, मेरा थोड़ा सा वो अलग है. मेरे को नंबर में थोड़ा उतना दिक्कत नहीं होता था नंबर याद रखने में. लेकिन फिर भी आई यूज टू गो फॉर, जो मैंने बताया था कि ऐसा दो टेक्निक्स यूज करता था. एक तो था स्पेस रिपीटिशन और था एक्टिव रिकॉल. तो फॉर नंबर्स आई वेंट फॉर एक्टिव रिकॉल. ऐसा क्वेश्चन ऐसा फॉर्मेट में ऐसा पेज पे लिख लेता था. लेट्स से फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, फिर ऐसे क्वेश्चन मार्क डाल के थोड़ा दूर पे ऐसा आंसर लिख लेता था. तो फिर मैं उसको रिवाइज करते वक्त मैं उसको ऐसे आई यूज टू कवर अप द आंसर्स और अपने आप से ऐसे सोचता था. तो ऐसे ऐसे करके 6-7 टाइम्स ऐसा, 6-7 राउंड्स और सच रिवीजन के बाद तो कुछ ना कुछ याद हो ही जाता है. और एग्जाम में वो एग्जैक्ट कोट करना ऐसा भी जरूरी नहीं है. इट्स अगर 73.6% है तो इट्स ओके टू गिव 74%, ऐसे अराउंड 74% लिख के. आई थिंक इट इज ओके. मैंने तो ऐसा किया था. और कभी गलती से हम कुछ गलत डेटा लिख दें तो उसके मार्क्स कट जाते हैं फिर ऑब्वियसली. हाँ वैसा तो, हाँ बिल्कुल जाना तो चाहिए. अगर एकदम ही गलत कुछ कोड कर दिया तो मतलब अभी एकदम इलॉजिकल डेटा हो जाएगा तो खराब तो होगा. अगर लेट्स से वी आर कोटिंग एन एग्जांपल की सी सरफेस इज इंक्रीजिंग एट द, सी लेवल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ x. तो अगर x के अलावा अगर हम उससे ज्यादा 100 मीटर ज्यादा दे देंगे, गलत कोड कर देंगे, तो सब सब तो डूब ही जाएगा पूरा दुनिया का. तो ऐसा एकदम ही लॉजिकल अगर डेटा हो गया तब तो पकड़े जाएंगे. लेकिन मेरे ऐसा ब्लफ नहीं किया था. मतलब अगर आता था तभी कोट करता था, अगर अन्ना
अगर नहीं आता तो Unless छोड़ and दो। until you're sure of the data you're quoting, don't do it, right? या Okay. And what is the importance of maps in the answers? अगर हम maps और diagrams या infographics include करें अपने answers में, so does that produce a good effect? हाँ, मैं तो वो जैसे मैंने बताया था, that was one way of value addition that I used to do. जैसे इस साल वो ज्योग्राफी के 4 questions they came in serial and each of them had a potential of having a map or a diagram. एक क्वेश्चन ओशन करंट का था, फिर एक क्वेश्चन ट्रोपोस्फेयर का था, तो ऐसे ही करके 4 क्वेश्चन एकदम कंटिन्यूअसली आया था ज्योग्राफी का, और एवरी वन ऑफ देम हैड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ यूजिंग अ डायग्राम, मतलब मैप्स, रबर प्रोड्यूसिंग आई थिंक ऐसा एक था। तो मैप्स तो बिल्कुल यूज करना ही होता है, उसके ऊपर से अगर कहीं पे वैल्यू एडिशन भी किया जा सकता है थ्रू मैप्स तो वो भी करना चाहिए। जैसे इस साल एक क्वेश्चन आया था कि कोस्टल इरोजन को लेके कुछ टेक्निक्स, इफ देयर आर सम टेक्निक्स विच थ्रू विच वी कैन रिड्यूस कोस्टल इरोजन, तो वहां पे एक स्ट्रक्चर आता है, वुडन प्लैंक जैसा होता है, ग्रोइन करके, तो मैंने उसको डायग्राम में डाल दिया था, डायग्राम डाल के मैंने लिख दिया था कि दिस इज ग्रोइन एंड वी कैन यूज दिस टू रिड्यूस कोस्टल इरोजन, तो डेफिनेटली इट्स यूजफुल। अभी तक मैंने जितने भी एस्पिरेंट से टॉपर से बात करी है, आई फाउंड आउट कि ज्योग्राफी एंड मैथ्स दीज आर गेनिंग अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन यूपीएससी एग्जाम्स नाउ। तो उन्होंने भी मुझे इस टाइप के एग्जाम्पल्स दिए। तो मैथ्स की कहाँ पे वैल्यू है प्रीलिम में, मेन में, इंटरव्यूज में, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहां मैथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? सो बेसिकली हाउ इंपॉर्टेंट आर दे एंड हाउ डू यू प्रिपेयर मैथ्स? जिसके मैथ्स और ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग नहीं है वो कैसे कर सकते हैं? अभी अभी इम्पोर्टेंस तो बहुत ही ज्यादा है एड्रेसिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। प्री में भी बहुत कुछ क्वेश्चंस आजकल वैसा आ ही जाता है फ्रॉम डायरेक्ट लोकेशन पे मैपिंग करने के। जैसे दिस टाइम आई थिंक देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन, ऐसे 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, मैंने एक देखा नागोर्नो कराबाख को लेके एक क्वेश्चन आया था। तो मैपिंग हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन प्रीलिम्स एंड मेन स्टेज। इंटर में भी कभी कभार काम में आ ही सकता है, बट इन जनरल अभी कैसे प्रिपेयर करें, ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है मैप लर्निंग, या फिर इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। एक दिन में थोड़ा थोड़ा ही करके जाना, मतलब आगे जाना होता है। क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, मतलब ओवर द टाइम वन विल गेन बेटर इंसाइट्स कि कहाँ पे क्या लोकेट करना होता है, कहाँ पे क्या है। थोड़ा थोड़ा सेक्टर वाइज फोकस करें तो बेटर है। अगर इंडिया का मैप देख रहे हैं तो उसको पहले पेनिनसुलर रीजन में देख ले, उसके बाद ठीक है, उसके बाद प्लेन्स पे देख लिया ठीक है, उसके बाद हिमालय पे आ गए, तो वैसे फोकस करना अच्छा होता है। अगर ग्लोबल लेवल पे देख रहे हैं तो कॉन्टिनेंट वाइज देखना अच्छा होता है, या फिर ओशन वाइज देखना अच्छा होता है। जैसे आज सिर्फ पैसिफिक के अराउंड क्या क्या बेस है, क्या क्या इसमस है, वो सब देख लिया तो ठीक है। नॉर्थ अमेरिका देख लिया है तो वहां पे क्या क्या माउंटेन्स है, सिर्फ वही देखे, ऐसा नहीं कि आज नॉर्थ अमेरिका देख लिया और आज ही बाकी सब भी देख लिया। तो थोड़ा थोड़ा करके आई थिंक दैट इज बेटर। इसके अलावा मैप्स, डायग्राम्स और हमारा स्ट्रक्चर आंसर्स का, क्या और भी कोई चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपने आंसर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए? फॉर एग्जाम्पल, हाउ इम्पोर्टेंट इज लैंग्वेज या वोकैबुलरी? अगर किसी की इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बहुत बेसिक इंग्लिश है उसकी, तो कैन दैट पर्सन स्टिल इम्प्रेस द यूपीएससी एग्जामिनर? हाँ, I think with the GS papers, it is definitely that high level of English is not expected. बस the sentence should make sense. और ऐसा भी नहीं है कि complete sentences में भी बहुत ज्यादा एफर्ट डालना होता है, मतलब जस्ट सेंटेंस को अच्छे से सेंस क्रिएट हो जाए वही काफी है मेरे हिसाब से। मैंने भी ऐसा बहुत हाई फाई इंग्लिश कुछ नहीं लिखा था इन द जीएस पेपर्स। So, how was your overall experience with the mains exam in terms of what you expected and what came in the papers? अच्छा, तो सिंस दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड ऑल्सो मैंने टेस्ट वगैरह नहीं लिखा था, तो मैं उतना ज्यादा होप नहीं कर रहा था। आई वेंट इनटू देयर फीलिंग लाइक एन अंडरडॉग। तो फिर भी मेरा टारगेट यही था कि सब पेपर, सब क्वेश्चन कंप्लीट करके आना है, और वहां पे जो जो मैंने प्रिपेयर करके रखा है उसको बस ठीक से लिखना है। तो बाकी क्वेश्चंस तो जैसे मैंने बताया कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जिसके ऊपर मेरे को एकदम ही आइडिया नहीं था। आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि हर एक क्वेश्चन के ऊपर कुछ ना कुछ आइडिया था, मैं बस लिख के आ गया। जीएस जीएस पेपर्स अच्छे गए थे, मुझे पता था कि जीएस गोइंग वेल। लेकिन ऑप्शनल से पहले, मतलब जो गैप होता है उसमें पहले 2 दिन मेरे को वायरल हो गया था, तो उसके बाद आई वाज नॉट श्योर कि ऑप्शनल कैसा जाएगा, बट थैंकफुली दैट आल्सो वेंट वेल, तो ठीक ही था।
एंड लास्टली, हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस? कैसा था आपका इंटरव्यू, कितनी देर चला था? आई थिंक मैं इंटरव्यू स्टेज के लिए सबसे ज्यादा प्रिपेयर किया था, बिकॉज मतलब उससे पहले तो मैं अकेला ही प्रिपेयर कर रहा था, कुछ भी ऐसा आई वॉज प्रिपेयरिंग इन साइलो, कुछ भी पता नहीं था, रेफरेंस पता नहीं था कि लोग दिल्ली में कैसे प्रिपेयर कर रहे हो। लेकिन जब मैं इंटरव्यू स्टेज पे गया तब आई वेंट टू दिल्ली, एंड उसके बाद जब लोगों के साथ डिस्कस किया तो आई मेड ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जिसके साथ मैं शाम को ऐसे दिन के सब क्वेश्चन ऐसे डिस्कस कर लेता था जो भी टॉपिक्स आते थे। ओवरऑल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा, मतलब मेन इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा कोर्डियल था, बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशनल टाइप था। एक मोमेंट के लिए भी कुछ भी ऐसा नर्वसनेस फील नहीं हुआ था मेन इंटरव्यू में। कभी कभार मॉक में भी अगर थोड़ा नर्वस हो जाता था, लेकिन फिर भी मेन इंटरव्यू वेंट वेरी स्मूथ। बाकी it went for around 30 minutes, and since my first preference was Indian Foreign Service, so around 70% of the questions were around international relation and that topic. Okay. So was there a lot of grilling? ऐसा लगा आपको कि बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपको थोड़ा नर्वसनेस हो रही थी, या एग्जैक्टली कैसा था? नहीं, वैसा कुछ नहीं था। मतलब क्वेश्चंस तो पूछते, मतलब क्वेश्चंस पूछना इज गुड थिंग, मतलब इफ दे आर आस्किंग क्वेश्चंस देन इट शोज दैट दे आर टेकिंग इंटरेस्ट, एटलीस्ट मेरा तो वैसा ही मानना था। तो क्वेश्चंस जो पूछे गए थे मेरे को, नॉर्मली क्वेश्चंस ऐसा ही था कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता था इट यूज्ड टू बी बेस्ड ऑन अ वर्ड दैट आई हैड मेंशन्ड इन द प्रीवियस आंसर। जैसे मैंने कहीं पे ग्लोबल साउथ मेंशन कर दिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था इट वाज ऑन ग्लोबल साउथ, कि व्हाट शुड इंडियाज पोजीशन बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्लोबल साउथ नो। तो जो भी मेंशन करता था उसी के अराउंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता था। तो इट्स गुड, इट्स अ बिल्ड अप, इट वाज काइंड ऑफ अ बिल्ड अप इंटरव्यू। और ऐसे इंटरव्यू पे थोड़ा सा अपना भी कंट्रीब्यूशन रहता है, क्योंकि इट वाज बेस्ड ऑन द वर्ड्स दैट आई वाज सेइंग, सो आई कुड एक्चुअली मतलब आई कुड डिसाइड कि मेरे को ये वर्ड बोलना है कि नहीं, बेस्ड ऑन, क्योंकि पता था कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाना है। तो उससे उस टाइप का इंटरव्यू से थोड़ा अच्छा होता है। हाँ, लेकिन आपके पास इतना टाइम था कि आप आंसर भी सोच लें और ये भी सोच लें कि ये मुझे बोलना है पर ये मुझे नहीं बोलना है। मतलब उस टाइम पे ऐसा आपका होता है मेंटल सिचुएशन? हाँ, बहुत मॉक दिया था ना वो। आई थिंक आई गिव अराउंड लाइक 10 or 12 मॉक इंटरव्यूज। तो उतना कंट्रोल आ गया था कि थ्रू आउट द प्रोसेस, जब मैंने पहला मॉक दिया था बहुत ही ज्यादा क्रूड था, लेकिन थ्रू आउट इतने सारे मॉक इंटरव्यू देते देते मतलब हो गया था ऐसा कि वो हार्डवायर हो गया था कि ये वर्ड ऐसे मत जाओ, इधर मत जाओ, तो दूसरे रास्ते से जाओ, तो ऐसे दिमाग में हो जाता था। ओके, नाइस। और आपके पर्सनल बैकग्राउंड से किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए थे उन्होंने? और क्या कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा था आपके पर्सनल बैकग्राउंड के बेसिस पे जो आपको लगा कि ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये पूछ लेंगे? नहीं, मेरा मेन इंटरव्यू में मैंने ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन का आंसर कर दिया था, दो क्वेश्चंस को छोड़ के। दोनों ही बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस थे। बाकी पर्सनल बैकग्राउंड से बहुत ही, जैसे मैंने बोला, बहुत ही कॉन्वर्सेशनल टाइप ऑफ इंटरव्यू था। एकदम नॉर्मल सा ऐसा बातें कर रहे थे। पर्सनल बैकग्राउंड से, मैं मेडिकल बैकग्राउंड से आता था, तो थोड़ा सा मेरे से, और जैसे मैंने रूरल सर्विस किया हुआ था मेडिकल ऑफिसर के हिसाब से, तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन वहां से आया था, बहुत ही कर्सरी लेवल पे पूछा था। लेकिन इन डेप्थ पे मेडिकल बैकग्राउंड से मेरे को पूछा था। उन दिनों राजस्थान में बिल है, बिल टू राइट टू हेल्थ बिल आया हुआ था, तो उसके अराउंड क्वेश्चन काफी डेप्थ पे पूछा गया था। बाकी तो उतना नहीं पूछा। बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर अराउंड इंटरनेशनल रिलेशन ओनली। ओके। सो इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर बात करें तो किस तरह से आपने उनकी प्रिपरेशन करी? बिकॉज वो भी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और उसकी वैल्यू बहुत है, क्योंकि ऑब्वियसली करंट अफेयर्स भी कई हद तक इंटरनेशनल रिलेशन से भी पूछे जाते हैं। सो हाउ डिड यू प्रिपेयर दैट सब्जेक्ट? तो अभी मेरा, सिंस माय प्रेफरेंस इज आल्सो आईएफएस, तो मेरे को खुद ही बहुत इंटरेस्ट था उस सब्जेक्ट के ऊपर। तो बहुत सारे टॉपिक्स मैंने खुद ही पढ़े थे, न्यूज़पेपर से हो गया या फिर आर्टिकल वगैरह से हो गया। उसके अलावा मैं और एक किताब यूज कर रहा था कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए। वो दीपांशु सर का एक किताब आता है इंटरनेशनल रिलेशन को लेके, तो उसे पढ़ा था। उसके ऊपर से करंट में जो भी आता था, न्यूज़पेपर से हो गया, मंथली से हो गया, वो सब बेस मटेरियल पे ऐड करता जाता था। मतलब वो खुद ही का इंटरेस्ट था, तो बहुत कुछ खुद ही प्रिपेयर कर लिया था उसके अराउंड। एक जनरल क्वेश्चन है मेरा
कि पूरा इतना लंबा जर्नी होता है यूपीएससी प्रिपरेशन का, और 3 स्टेजेस होती हैं जो कि अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होती हैं. दे रिक्वायर वेरी एक्सटेंसिव study and preparation. So how did you stay motivated throughout the journey? What kept you going? And did you ever feel like, yeah, this is too much? Maybe ठीक है, कोई नहीं, अभी नहीं तो नेक्स्ट में कर लूंगा. मतलब कभी तो नहीं, मतलब आई थिंक कुछ 10-15 दिन बाद तो हो ही जाता था छोटा छोटा ऐसा मेंटल ब्रेकडाउन कि नहीं हो पाएगा, इतना तो कौन ही करेगा. उधर मेडिकल में इतना स्टेबल सा लाइफ था, तो अभी इतना क्यों ही रिस्क ले रहा हूँ, तो वो सब तो डाउट्स आता ही रहता था. आई थिंक एकदम टोटली मोटिवेटेड रहना तो थ्रू आउट द प्रोसेस उतना पॉसिबल नहीं है. अप्स एंड डाउन्स तो हर किसी के दिमाग में आता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक जब भी फॉल किया जाए तो आई थिंक इट शुड बी वंस ओन सेल्फ मोटिवेशन दैट पिक्स वन अप. खुद ही को मतलब उठाना पड़ेगा. और वही रहता है कि one should always start thinking कि why did he start this journey. जैसे मेरे लिए वो यही था कि अगर someday मैं इंडिया का डिप्लोमेट बन गया तो just imagining the fact कि I might be able to represent my country at the highest of level, तो मैं वही सोचता था, फिर एक बूस्ट मिल जाता था. तो आई थिंक वही है कि सेल्फ मोटिवेटिंग फैक्टर तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनविंसिबल ही हो जाए कि मेरे से हो ही जाएगा. मतलब ऐसा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा तो ब्रेकडाउन होता ही है, छोटा छोटा. आप बीच बीच में अपना खुद को इवैल्यूएट करते थे, टेस्ट करते थे अपना प्रोग्रेस टू स्टे मोटिवेटेड? हाँ, मतलब टेस्ट करने से थोड़ा बहुत तो आइडिया हो जाता है. जैसे मैं वो डेली क्विजेस करता था, तो अगर स्कोर वो 5 क्वेश्चन ही आता था डेली के, तो 5 में से अगर 4 भी करेक्ट हो जाए, 3 भी करेक्ट हो जाए तो ठीक होता था. लेकिन अगर 2 करेक्ट हो गया उस दिन, तो उस दिन मूड ही खराब हो जाता था. तो आई थिंक वैसा तो था ही, टेस्ट होना गुड. Does it help to have a study? What is going on? Does it help to have a study group or group of friends who's also preparing for UPSC, so you can talk to them sometimes, discuss your progress with them? हाँ, आई थिंक इट हेल्प्स डेफिनेटली. मतलब मेरा ऐसा रेगुलर ग्रुप तो नहीं था, बट आई हैड 2 फ्रेंड्स हु आर आल्सो प्रिपेयरिंग, बोथ आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम आसाम इटसेल्फ. तो कभी कभार उनको कॉल कर लेता था, ऐसे ही पूछ लेता था कि क्या क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो. फिर थोड़ा सा ऐसे ही, हर कोई कंप्लेंट तो करता ही है कि मेरे से ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो वैसा कर लेता था. तो इट हेल्प्स आई थिंक. बट अगर नहीं भी हो तब भी आई थिंक हैविंग अ इमोशनल सपोर्ट सिस्टम इज आल्सो गुड इनफ. अगर फ्रेंड नहीं है तब भी अगर मदर है, फादर है, जिनके साथ आप, एल्डर ब्रदर हो, सिस्टर हो, जिनके साथ आप बात कर सकते हो, तो आई थिंक दैट इज आल्सो गुड इनफ. So, what is your message to the current aspirants who are preparing for UPSC exam? उनको आप क्या advice करना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे अभी? I think first of all, have that self confidence कि you can do it too. अभी self confidence के साथ secondly I would say कि hard work करना तो पड़ेगा, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा स्मार्टली भी काम करना पड़ता है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है. अगर सब पढ़ने लग जाएंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा चीजें, तो थोड़ा स्मार्टली काम करना पड़ेगा. और थर्डली क्या बोलूँ कि रिवाइज करो, बहुत रिवाइज करो, और बाकी बेस्ट विशेस फॉर टू देम. And when does your training start? Are you excited to go? Yeah, it would probably start by the end of this July month, and I'm very excited. Hopefully it comes sooner, or I want to go soon for the training. What is your preferred services to join? My Indian Foreign Service. Oh, IFS. That's great. Yeah. So we wish you all the best, sir. Thank you so much for joining us today, taking out time for us. I'm sure this interview will help many aspirants. It will motivate them. And once again, we congratulate you for your extraordinary success. This was truly inspiring, and it was a great, exciting conversation. So thank you so much for your time. Thank you for having me. Bye, everyone. Thank you, and we will be back with more Topper interviews.